Okay. So yesterday we had discussed about the two laws of reflection. Can anyone there or here state laws? Pratham, एक यहाँ से पूछ लेते, एक वहाँ से पूछ लेते. That angle of incidence is always equal to angle made by the reflected ray. जब आप statement बोलेंगे तो you will say the statement as such what it is given in your book. It simply says that. Can anyone else? Anji. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. And I guess Shrey is there. Shrey, can you tell me the second? Yes, ma'am. The incident ray, the normal, and the reflected ray always lie on the same plane. They all three lie in the same plane. Now इस experiment को हमने prove करने के लिए I tried doing it with a torchlight, but I could not do it. So I am explaining this with the help of this experiment what we are doing. What we need is a mirror, a rectangular mirror. Then I have taken a plain page and I am taking few pins. I want one of you. ये window please close this window. ये हवा से उड़ रहा है. Anamika, can you come? We have to fix these two pins, paper pins, ordinary pins I have taken, and I have to put it here. One pin I have put it in front of the. Come from that side. One pin I have fixed it on the paper, and now Anamika will look into the mirror and put another pin right in straight line here. After looking into the mirror, my dear, इतने दूर नहीं, यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा आगे. हाँ जी, ध्यान से. Are they in straight line? I'll be showing you Ganesh. Ganesh है ना? अच्छा, गणेश के पीछे क्या है? ओके ओके. या और जगह पे डाल दीजिए बेटा, आगे देखकर डालना. तो she is trying to fix the pin there. नहीं हो रहा, पिन दूसरी ले ले. हो गया? Let me check once whether they are in straight line or not. Okay बेटा, thank you. आ जाइए बेटा. He is forgot his name. हाँ जी. Amrit. Now you have to look at the image of these two pins. यहाँ से दिखाई देंगे. These two pins, ये जो pins अभी हमने fix किए हैं, in a line, when they are joined, they will indicate an incident ray. ठीक है, क्योंकि हमने fix किए हैं. अब आपने ये pin लगाना है, looking at the image of these two pins from this side of the mirror. इस side से देखिए बेटा अमृत. इधर बैठिए. हाँ, बिल्कुल ठीक. बैठ जाइए. इसकी इमेज जो आपको दिखाई दे रही है उसमें पेन फिक्स कीजिए. पहली वाली के लिए पहला और दूसरे वाली के लिए दूसरा. नॉट दैट साइड बेटा, दिस साइड. आपको इमेज यहां से दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है ऐसी. उसकी स्ट्रेट लाइन में डाल दीजिए. हाँ बिल्कुल ठीक. थोड़ा आगे करके डाल दीजिए. बिल्कुल आगे. हाँ वहां पर. बिल्कुल ठीक. थोड़ा सा आगे कर लो अगर वहां पर फिक्स नहीं हो रहा बेटा. अगर वहां पर हार्ड होता है थोड़ा आगे ले जाओ. हाँ वेरी गुड. टेक अनदर पेन एंड पुट अनदर वन right in straight line looking at the image. So what Amrit is doing is he is looking at the reflected image of the pins what Anamika had fixed from the other side, and he is trying to put it in straight line. All right, I hope you can see it now. This is the way now it has been put. All right,
आप लोग भी देख लीजिए, इस तरह से अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये आई होप दे हैव पुट इट इन द स्ट्रेट लाइन। मैं इनका मान के चल रही हूँ बच्चों ने, आई वांट अ पेंसिल माय डियर, वेरी गुड। नाउ आई विल रिमूव दीज पेन्स, आई विल मार्क दीज पेन्स फर्स्ट कि कहां पर हमने मार्क लगाया है, so that we can join these points. मैंने पेन्स रिमूव कर दिए हैं and I will remove the mirror also. ठीक है, and let us now join. जहां पर हमने रखा था मिरर, उसकी जगह हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. Now I am trying to join these two lines with the mirror and hope they are right. लोगों ने देखा ठीक तरह था. I have drawn these two lines. This one is incident ray. Anyone has protractor? And this is the reflected ray. You can see it here, I guess. Incident ray and the reflected ray. वो जो circles हैं, they are the pins where they had been put. Now I'll draw a normal. आप लोगों को भी दिखाऊंगी बेटा. Don't worry. This is the normal ray. I've drawn a perpendicular to this and I've drawn the normal. ठीक है, पता लग गया सबको? ठीक है, सारी क्लास को एक बार दिखा दें हम, so that your friends can see who and all are present in the class. ठीक है ना, दिख रहा है? सभी बच्चे आ रहे हैं फोकस पे? ठीक है ना? ओके फाइन. अब आप लोग ये देखिए बेटा कि this is the reflected ray, normal ray and the incident ray. Now Salil will measure for us angle of incidence and angle of, do you have a protractor? Do you have a protractor, my dear? Please. Hanji, can you tell what is the angle now? Please write it down there. What is it? 15? 50 and 55 you are saying? बेटा आपको दोनों अलग अलग मेजर करने हैं. One angle is coming as angle of incidence is 50, an angle of reflection, if there is no human error, then it should come out as 50. और अगर आपने नोट किया था कि जितनी भी पिन थी, the ones which Anamika had fixed and the pins which Amrit had fixed, all of them were on the same side of the mirror, not on the other side, right? So this proves that incident ray and reflected ray, both, and the normal, what we have drawn, all lie in one plane. And he's saying that it is 51. Reflected is, angle of reflection is 51. A small human error, maybe in seeing how the pins were being observed as a reflection, तो वहां पर थोड़ा सा एरर हुआ है. Otherwise, if both the angles are equivalent, that means that the first law of reflection is also proved, that angle of incidence is always equal to angle of reflection. तो दोनों laws इस activity से हमने prove कर दी. ठीक है? Okay. Now, what happens is, when you are proving these two laws, you have to remember it is the reflection of those pins, what you had seen in the mirror, that shows that reflected ray is the bounced back
light from the shiny surface, and that process is known as reflection. अब reflection एक बार जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, when we observe ourselves in the mirror, we see our image. What is that? It is the image which has the light which has reflected from our body onto the mirror and then onto our eyes. तो मतलब reflection दो बार हुआ वहां पर. Yes? तो लाइट जो है it will not get only just once reflected, it will get multiple times of reflection it can be observed. And for that you have to do a simple activity. All of us have mirrors at home. Let me make you first recall. You go to a barber shop or salon and you have to get your hair cut and you want to see the back of your head कि वहां बाल कैसे कटे हुए हैं. So what do that person do? क्या करते हैं वो आपको पीछे के साइड के बाल दिखाने के? मिरर. और उसमें आपको एक ही इमेज दिखाई देती है कि एक से ज्यादा दिखाई देती है? मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देती है. और कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर ऐसे आपको दिखाई देता है? हाँ जी. ट्रायल रूम्स. ट्रायल रूम्स में तो सभी लोग जाते हैं. यस? नहीं, वॉशरूम में भी सभी जाते हैं बेटा, बट वॉशरूम्स में वी डोंट हैव मल्टीपल मिरर्स. वी डोंट हैव मल्टीपल मिरर्स इन वॉशरूम. ठीक है. बट ट्रायल रूम्स में हमारे पास मल्टीपल मिरर्स होते हैं. और वो मिरर्स की पोजीशन क्या होती है? वन इज ऑन दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एग्जैक्टली इन फ्रंट देयर इज राइट हैंड साइड पे एक मिरर होता है. वन इज इन फ्रंट एंड वन इज एट द बैक ऑन द डोर, ऑन द बैक साइड ऑफ द डोर. तो इसका मतलब दो पैरेलल मिरर्स इस तरफ हैं और दो पैरेलल मिरर्स इस तरफ हैं. तो जब आप पैरेलल मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो उनकी जो इमेजेस होती हैं वो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं. आपने ट्रायल रूम में देखा है, आप सिर्फ सिंगल नहीं होते, आपको दूर तक दिखाई देते रहते हैं अपनी इमेजेस. बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं. क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बीच में है उसका जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन था ऑन टू द लेफ्ट मिरर और टू द राइट मिरर. लेट्स टेक इट एज लेफ्ट मिरर फर्स्ट. तो पहले इधर गया, रिफ्लेक्ट हुआ, वो जो इमेज बनी है नाउ इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर राइट इन फ्रंट. और जो उसकी इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी. एंड इट विल कीप ऑन एंड विल मल्टीपल इमेजेस. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एंड इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. और अगर हम दो मिरर्स को पैरेलल नहीं रखेंगे, पैरेलल रखेंगे तो आपको मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी. अगर आप किसी एंगल पे उनको रखते हैं तो आपको एक डिफाइंड नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे. समझ आ रही है बात सबको? तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका एक एप्लीकेशन है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. एक और एप्लीकेशन है कैलाइडोस्कोप. कैलाइडोस्कोप जो है एक डिवाइस है. कैलाइडोस्कोप जो है, आई होप इट इज गिवन इन योर बुक, पेज नंबर 100. Spelling of kaleidoscope is wrong. Anyone can correct it? A-E-I-R. ठीक है. कैलाइडोस्कोप एक डिवाइस है जिसमें कि 3 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ मिरर वी टेक. ऐसे मिरर्स जो होते हैं 3 पीसेस वी टेक, रेक्टेंगुलर पीसेस, और उनको हम पैरेलल नहीं अरेंज कर रहे हैं. वी आर पुटिंग देम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. दैट मीन्स वन मिरर हियर, अनदर मिरर हियर एंड अनदर मिरर हियर. 3 ट्रायंगुलर शेप में हम उनको फिक्स कर देंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. और सबका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ होगा. ठीक है. सबका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की तरफ होगा. और ये जब हम अरेंज कर देते हैं, जब वो उनको एक साथ प्लास्टर कर देते हैं, सील कर देते हैं विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड. अब उसके 2 एंड्स आ गए. एनीवन हैज गॉट अ बॉटल और समथिंग? वो दे दो, छोटी सी बॉटल. सो इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे. अब उसके 2 एंड्स होंगे. 2 एंड्स होंगे. जब आपने उसको अरेंज कर दिया इस तरह से, एक ही एंड होगा, एक ही एंड होगा. इस एंड के ऊपर, एक एंड के ऊपर आप लगा दोगे एक ट्रांसलूसेंट शीट.
Translucent sheet. What is the definition for translucent? What are translucent objects? The light is able to pass through it, but you are not able to see through it. You are not able to see through it, but light can pass through it. तो एक एंड पे आपने उसको, जो ट्राइंगल के साथ में जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें आपने एक एंड के ऊपर आपने उसके ट्रांसलूसेंट शीट लगा दी, और दूसरे एंड के ऊपर आप एक मे बी अ कार्डबोर्ड और अ हार्ड पेपर, ठीक है, थिक पेपर आप उसके ऊपर लगा देंगे. अब उस थिक पेपर वाली साइड के ऊपर आप एक पीप होल करेंगे. पीप होल मीन्स अ स्मॉल होल थ्रू विच यू कैन सी, एंड व्हेन यू सी थ्रू दैट होल, नहीं, बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, बिफोर सीलिंग दीज टू एंड्स, आपने इस जहां पर आपने 3 ग्लास के पीसेस अटैच किए हैं, उनके बीच में ब्रोकन बैंगल्स के पीसेस या कलरफुल बीड्स या कलरफुल बटन्स जो है थोड़े से डालने, बहुत ज्यादा नहीं. यू हैव टू पुट 3, 4, 5, 6 पीसेस ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ कलरफुल बैंगल्स, या फिर आपको बटन्स मिल जाएं, अगर आपको कलरफुल बटन्स मिल जाएंगे तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बीड्स मिल जाते हैं कलरफुल, वो आप डाल सकते हैं. 3-4 सारी चीजें डाल दीजिए, एंड देन सील दिस एंड विद अ ट्रांसलूसेंट पेपर, एंड इस साइड पे आप थिक पेपर लगाकर उसमें एक पीप होल डालिए, एंड यू व्हेन यू वॉच थ्रू दैट पीप होल, यू विल सी मल्टीपल डिजाइन्स, ब्यूटीफुल पैटर्न्स. जैसे जैसे आप उसको घुमाते जाएंगे और उसको वॉच करते जाएंगे, एवरी टाइम अ न्यू ब्यूटीफुल पैटर्न विल बी ऑब्जर्व. और ये जो डिवाइस है, अब आप बोलेंगे ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ देखने के लिए, एंटरटेनमेंट नहीं. इसके जो डिजाइन्स हैं वो आर टेकन अप, उनसे से इंस्पिरेशन लेकर ब्यूटीफुल फैब्रिक डिजाइन्स बनाए जाते हैं. जो फैब्रिक्स के ऊपर डिजाइन होते हैं उसके जो इंस्पिरेशन है, सोर्स है, वो कैलाइडोस्कोप है, तो वहां से भी पिक किए जाते हैं. तो कैलाइडोस्कोप जो है, और यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पेपर लगाने का ये एक रीजन है कि वहां से लाइट एंटर हो रही है, और जब आप यहाँ से देख रहे हैं, जब आपने तीनों तरफ से उसको बंद कर दिया, यहाँ से भी बंद कर दिया, तो अंदर तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इफ यू हैव टू लुक समथिंग, सी समथिंग, लाइट शुड बी देयर. तो अगर आप यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो आपको नजर नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर बंद कर रहे हैं तो आपको लाइट इज पासिंग एंड इट इज गेटिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है 3 मिरर्स के साथ में, और अलग अलग पैटर्न्स के डिजाइन बन रहे हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज कैलाइडोस्कोप. फर्दर अनदर प्रॉपर्टी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ में लाइट की एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज डिस्पर्शन. यस, डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन जो है फिनोमिनन, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डिस्पर्शन? अब क्या आना है? हाँ जी बिल्कुल बेटा, बोलिए. Ma'am, the process of splitting of light into 7 colors, that is Webcure. ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चा एक साथ बोल रहा है, विजुअल और रियल वाले एक साथ बोल रहे हैं, तो 1 at a time. पहले प्रथम बोलेगा जो कि क्लास में प्रेजेंट है, और उसके बाद में वंश बोलेगा जो कि वर्चुअल है. नहीं, व्हाइट लाइट नहीं, डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन चाहिए. इनटू कलरफुल. ओके बैठिए. हाँ जी वंश, कैन यू एक्सप्लेन इट? The process of splitting of white light into 7 colors is called dispersion. The colors are violet. 7 colors. Aryan, you need to look here. You cannot see rainbow here right now. Webcure. ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रेनबो नजर आने लग जाएगा, ठीक है, वहां पर डिस्पर्शन की जरूरत नहीं होगी, वैसे ही रेनबो नजर आएगा. सो दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म माय डियर, ठीक है. एंड ये जो प्रिज्म है, इसके थ्रू जब व्हाइट लाइट पास होगी, इट विल स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. ऑलराइट, इट विल स्प्लिट द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जिसको हम कहते हैं विबग्योर. सुना हुआ है? ये प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट पास हुई, so it will form the 7 colors of rainbow, that is violet, indigo, blue,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें जो अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेड लाइट है ये सबसे ज्यादा बेंड हो रही है और वायलेट लाइट जो है वो सबसे कम बेंड हो रही है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है आपको कहाँ देखते हैं? हाउ, वेयर डू यू सी दिस पैटर्न? यू सी दिस पैटर्न इन रेनबो। वहां पर आफ्टर रेन इट इज ऑब्जर्व, एंड व्हेन इज इट ऑब्जर्व्ड आफ्टरवर्ड्स? जब रेन के बाद में water droplets are suspended in the air itself, and when sunlight falls over it, Air. each drop will act as a prism. Act as prism. Drop will act as a prism. There will be There splitting of are drops light. suspended in the air, और उनमें से जब लाइट पास होती है then it forms a beautiful rainbow. आपको रेनबो वाला पैटर्न या डिस्पर्जन या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आपने कहाँ देखी है? और कहाँ देखी आपने डिस्पर्जन? कहाँ पर देखा है आपने? और बेटा we'll continue tomorrow and I'll be sharing a video which I'll make at home and then I'll share with you today. ठीक है मैम? प्लीज ma'am. Ma'am, I saw sometimes splitting of light. Ma'am, Vansh was asking something. It's okay ma'am, I'll let him ask in the Ma'am, class. no, okay. हाँ जी बेटा बोलिए। Ma'am, no, I saw the splitting of light.